This is the next video in your chapter 2, Microorganisms, Friend and Foe of class 8 biology section. The next topic which we are going to study today is food preservation. You must have seen some of your food getting spoiled during this is the season of monsoon. This is the time where your food gets spoiled very easily. In the summers also you must have seen your food getting rotten. You get a pungent smell out of your food. So these are some of the symbols which makes you think or through which you can observe that your food has been spoiled. First of all, there are some symbols of the signs. One, it gives you smell, pungent smell. Second, it seems different in color, it changes color. Third one, if you touch it, you will find sometimes, for example, rice, it gets sticky. Dal, you will see foams coming out of it. So there are some symbols, there are some signs which makes you know that the food has gone. Food is not suitable for eating. So the next section is 2.5 food preservation. तो how you preserve food? आप food preserve कैसे करते हैं? So according to the chapter, you know that breadcrumb left. अगर आप breadcrumb छोड़ देते हैं पड़ा हुआ तो उसमें देखिएगा फफूंद लग जाता है सफेद रंग का कुछ, और वो खाने में अगर खा लेते हैं तो उसका स्वाद भी खराब होता है। वही उस तरह के खानों को प्रयास करना चाहिए नहीं खाना। उसके बाद यहाँ पर जो चैप्टर में दो बच्चे हैं पहेली और बुझो, उनमें देखा कि पहेली ने कुछ मैंगोस खरीदे थे और उनको वो कुछ दिनों तक खा नहीं पाया। बाद में उसने जब उसे देखा तो उसने पाया कि वो खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। लेकिन वो ये भी जानती है कि जो उसकी दादी माँ जो अचार बनाती है, पिकल जो अचार बनाती है, वो खराब नहीं होता, काफी समय तक खराब नहीं होता है। तो हमें इस चैप्टर में सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी पढ़नी है, कुछ मेथड्स पढ़ने हैं जिसके द्वारा हम अपने खाने को बचा सकते हैं। We will study some of the methods which are used by us for preserving our food. The first one is chemical method. तो chemical method क्या होता है? Salt and edible oils, for example mustard oil. So edible oils are common chemicals. These are some of the chemicals which are used to generally check means to stop the growth of microorganisms. Therefore they are called as preservatives. आपके घर में अचार बनता होगा, अचार में आप देखते होंगे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सबसे पहले उसको नमक वाले पानी में धोया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, उसके बाद फिर जब उसको मिक्स करते हैं तो नमक मिलाया जाता है, मसाले मिलाए जाते हैं और तेल मिलाया जाता है। तेल काफी ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। तो the oil uses as a covering agent for those pickles to get preserved. They don't get spoiled because the bacteria or the microbes can't attack. So we add salt or acid preservatives. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. आप जैम खाते होंगे, कई दिनों तक जैम पड़ा हुआ रहता है, वो खराब नहीं होता है। सॉस खाते हैं, सॉस काफी समय तक पड़ा हुआ रहता है, खराब नहीं होता है। तो why? Because of some of the preservatives. These are some of the chemical preservatives: sodium benzoate and sodium metabisulfite. You must remember these two chemicals. These are the chemical preservatives used to preserve some of their food items. The next point is preservation by common salt. Common salt जो घर में आप खाते हैं, तो कॉमन सॉल्ट में क्या होता है? आप अगर बाजार गए होंगे तो you must have seen there are some
salt preserved food items being said. Common salt has been used to preserve meat and fish from ages. Ages मतलब सदियों से. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. अब इमली जो दुकान में मिलती है, इमली में आप देखते होंगे नमक का एक परत रहता है, वो उसको खराब होने से बचाने के लिए होता है. वैसे ही मैंगो जो अचार होता है उसमें भी. उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर. चीनी. चीनी के द्वारा हम कैसे सुरक्षित रखते हैं? Jams, jellies, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria in spoiled food. यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कहाँ होता है. अगर उसे कंडीशन मिलेगा तभी उसका ग्रोथ होगा, और उसका कंडीशन अगर उसको नहीं मिलता है तो आपका खाना बचा हुआ रहता है, क्योंकि उनके ग्रोथ के कारण ही आपका खाना खराब होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो सबसे बेहतरीन कंडीशन होता है वो होता है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, तापमान और आर्द्रता. अगर आप इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी चेक कर लें तो चीजें आपकी सुरक्षित रह सकती हैं. जैसे फ्रिज में खाना रख दिया जाए तो वो 4 दिन 5 दिन तक सुरक्षित रह जाता है. क्यों उसमें सुरक्षित रहता है? बिकॉज इट हैज लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम. द सेकंड वन इज द ह्यूमिडिटी. सो हाउ यू कैन लेसन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ फूड? तो हाउ यू कैन डू इट? You can do it either by adding salt or by keeping that food material in oil, because oil will close the contact of microorganism with the food item, and oils does not let anything to grow on them. So this is the preservation by sugar. Sugar also reduces the moisture. It reduces the moisture content of the food and thus does not allow the microorganisms to grow on them. Next is preservation by oil and vinegar. So use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. जो अचार बनता है, जो पहले भी बता चुके हैं, अचार बनाने में नमक और तेल are the main ingredients. नमक क्या करता है? It reduces the amount of water present in the food, and oil function as the blockage between the food and the microorganisms. So preservation of oil by oil and vinegar. Vinegar you must have seen if you ever have gone to a restaurant, you will see there onions. Onions come to you in a plate or in a bowl and they are yellow in color. आपके पास जो प्याज आता है रेस्टोरेंट में, आप देखिएगा वो थोड़ा पीला रंग का होता है अगर वो मोटा प्याज है तो. Why their color is yellow? Because they have been preserved in vinegar for longer purpose. लंबे समय तक उपयोग करने के लिए प्याज को विनेगर में रख दिया जाता है. Next is heat and cold treatment. Heat and cold treatment ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जब आपके घर में दूध आता है तो दूध को उबाल दिया जाता है और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, और वो दूध जो है खराब होने से बच जाता है. जैसे ही कुछ समय होता है, 7 घंटे 8 घंटे बीतने लगते हैं, तो माँ जो है वो फिर से दूध को उबाल देती है और उसको फिर ठंडा होने छोड़ देती है. तो इन दिस वे हीट एंड कोल्ड मेथड. देयर इज another method where heating and cooling, rapid cooling, that is called as pasteurization. What is pasteurization? आपके जो घर में पैकेट का दूध आता है, पैकेट वाला दूध देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि वो दूध जो है 2 दिन तक खराब नहीं होता है. अगर उसको ठंड में रखा जाए, थोड़ा कम तापमान पर रखा जाए तो खाना वो जो दूध है वो खराब नहीं होता है. तो क्यों नहीं खराब होता है? Because they have been pasteurized. Pasteurization is a process in which, ध्यान से सुनिएगा, pasteurization is a process in which milk is boiled and then is rapidly cooled. उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है. The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds
and then suddenly chilled and stored. यानी उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और अचानक से फिर उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? This prevents the growth of microbes. अब क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है, इस प्रक्रिया का जो इन्वेंशन है, उन्होंने लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, इसके कारण उनके नाम के आधार पर इस प्रोसेस को नाम दिया गया पैस्चराइजेशन। तो फिर से पैस्चराइजेशन क्या है? पैस्चराइजेशन इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क। बेसिकली इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज हीटेड एंड देन इज चिल्ड और कोल्ड वेरी रैपिडली and then it is stored. This lets the milk, the didn't get spoiled for a longer period. Next is storage and packing. You must have seen storage and packing. You must have seen that paneer, जो सुधा या किसी भी चीज पैकेट वाला जो पनीर आता है, आप देखिएगा उसका पैकिंग थोड़ा अलग होता है, या जो खजूर आता है उसका पैकिंग आप देखिएगा थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या डिफरेंस है कि आप देखिएगा कि जो पनीर का पैकेट है वो एग्जैक्ट पनीर के साइज का ही पैकिंग होता है और उसके बीच में कोई हवा नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम सील कर देना। वैक्यूम सील का मतलब जो पैकिंग है, पैकेजिंग है, उसके अंदर डाला जाता है फूड मटेरियल को और उसके बाद उसमें से सारी हवा निकाल दी जाती है and then it is sealed. उसमें से सारी हवा निकाल कर उसको सील कर दिया जाता है। इसके कारण there are no place or there are no thoroughfare through which the microbes can get inside it, and that's how they remain unspoiled for a longer period of time. Next is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 और 7 में भी आपने पढ़ा होगा। राइजोबियम, what it is? It is a bacteria which grows in the nodes of leguminous plants. These leguminous plants, what do they do? In other words, leguminous plants are the plants which give you dal, दलहन। हिंदी में उन्हें दलहन मतलब दाल वाले पौधे। They are called as leguminous plants such as beans, peas. Now, what is nitrogen fixation? First of all, हमें ये जानना होगा कि नाइट्रोजन पौधों को जरूरत क्यों पड़ता है। तो नाइट्रोजन जो है पौधों का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, मुख्य तत्व है उसके वृद्धि और विकास के लिए। उनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन नाइट्रोजन वो जैसे पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वैसे वो ले नहीं सकते नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन तो है हमारे वायुमंडल में, वातावरण में मौजूद है, लेकिन इन गैसियस फॉर्म, और प्लांट्स गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। सो वेयर डू दे गेट इट फ्रॉम सॉइल। सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं एंड इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सो हाउ विल इट कम इनटू द सॉइल? This is done by various elements. One of them is the rhizobium bacteria. Whenever you grow a leguminous plants in your field, there are these bacteria, rhizobium, which grow in the nodes of those plants, and they fix the nitrogen in the soil as nitrogenous compound. आप जब भी दाल के पौधे उगाते हैं खेतों में तो क्या होता है कि उसके जो नोड्स है, गांठ जो होती है, उसमें छोटे छोटे जो गांठ होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पनपते हैं और उसके बाद वो नाइट्रोजनस कंपाउंड के तौर पर वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन मिट्टी में फीड कर देते हैं और उसके बाद वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स दे कैन एब्सॉर्ब इट। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको इसका एक ग्राफिक्स भी शो कर चुके हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
साइकिल जो वर्ड यूज किया जाता है, इसके लिए जो रिलेशन है वो पहिए के साथ लिया गया है। पहिया मतलब हो गया जो सर्कुलर चीज है, जहां से शुरू होता है वहीं पे जाके वापस वो मिल जाता है, उपयोग होता हुआ ये पहुंच जाता है वापस। तो ये है यहाँ जो हमें शुरुआत करनी है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से शुरुआत करनी है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर से हम बता दे रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। नाइट्रोजन उन्हें मिट्टी के द्वारा ही मिलती है। थ्रू देयर रूट्स दे ओनली कैन एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो here what we have atmospheric nitrogen. Now it's the cycle starts. The first arrow you will see lightning fixes nitrogen. Lightning मतलब बिजली, जो आकाशीय बिजली है वो जब आकाशीय बिजली जमीन से टकराती है तो it क्या करता है, it fixes the nitrogen in soil. The other method is nitrogen fixing bacteria and blue green algae fix atmospheric nitrogen. तो ये जो माइक्रोब्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं, जो यहाँ दिया गया है। बैक्टीरिया इंटर्न फिक्सेस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उसके बाद वो बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देता है। तो ये दो मेथड जो है, देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा मिट्टी में पहुंचा, बिजली के द्वारा मिट्टी में पहुंचा, और फिर से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा फिर से होता हुआ मिट्टी में पहुंचा। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखिए दो लिंक्स जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो पहले हम डायरेक्ट वाला देख लेते हैं। यहां मिट्टी में पहुंच जाने के बाद बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अगर बैक्टीरिया जमीन में है किसी तरह का, या कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको फिर से नाइट्रोजनस जो है गैस में चेंज कर देते हैं, ये पहला मेथड है। और उसके बाद गैस में चेंज होने के बाद ये वापस अपनी जगह पर रिस्टोर हो जाता है। द नेक्स्ट इज दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड आर टेकन बाय प्लांट्स। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ये प्लांट इनको ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद द एनिमल्स ईट प्लांट्स ले लिया, प्लांट्स में उपयोग हो गया फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन इट इज बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट कर लेते हैं। उसके बाद दीज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ। उसके बाद वो जो एनिमल जो खाएं प्लांट्स को, उनके शरीर में वो नाइट्रोजन जो है वो जब हम एक्सक्रेटा वेस्ट डिस्पोज करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो कि मिट्टी में पहुंच जाती है। और दूसरा, अगर उस जीव का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो भी वो मिट्टी में